Very good evening, class. Let's continue with our topic. So, before starting with the actual topic, let's discuss the formulas what we have studied till now. हमने सबसे पहला फॉर्मूला अब तक क्या पढ़ा है? डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. फिर हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. फिर हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है. Change in displacement upon time. It is change in displacement upon time. फिर हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा है. एवरेज स्पीड में हमने दो फॉर्मूलास पढ़ा था. एक फॉर्मूला फॉर अ डायरेक्ट जर्नी व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डायरेक्टली. इन दैट केस we use the relation u plus v by 2. Whenever a body moves from point A to point B directly, right? In that case, the formula for average speed is u plus v by 2. And second general formula is, which is commonly used while solving numericals, are total distance upon total time. It is total distance upon total time. दोनों formulas आपको याद रखना है, because एक formula हमें derivations में काम आएगा और दूसरा formula हमें numerical solve करने में काम आएगा. ये same formula अगर मैं average velocity के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? For a direct journey, it is u plus v by 2. That is initial velocity plus final velocity upon 2, right? और average velocity का दूसरा formula क्या होगा? Total displacement upon total time. Total displacement upon total time. Next, acceleration के बारे में हमने पढ़ा है. Acceleration क्या होता है? Change in velocity upon time. Acceleration क्या होता है? Change in velocity upon time. Acceleration is positive when we press the accelerator, मतलब when final velocity is greater than initial velocity. In that case, acceleration is positive. When final velocity is equal to initial velocity, then acceleration is 0. And when final velocity is less than initial velocity, in that case acceleration is negative. Plus negative acceleration के दो और नाम हैं, एक retardation और दूसरा deceleration. First is retardation और दूसरा है deceleration. Okay? तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि acceleration is -2, तो retardation तो negative of acceleration होता है ना, मतलब -2, that is 2 meter per second. Okay? I hope आप ये याद रखेंगे. अच्छा, when a body is released from a certain height, when a body is released from a certain height like this, तो यहाँ acceleration क्या होगा? Positive. अच्छा, when a body is projected in upward direction, तो वो it is moving against gravity ना, तो इस केस में acceleration will be what? Negative. Acceleration will be negative. ओके, तो आई होप ये हमने जितना भी फॉर्मूलाज पढ़ा है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर है. ओके, इतने फॉर्मूलाज हमने पढ़े, राइट? अब हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलेस की मदद से हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करें. ओके, okay, so put the heading equations of motion. Derivation of equations of motion.
derivations of equations of motion. ये है theoretical method. कौन सा method है ये? Theoretical method. There are two methods for deriving the equations of motion. पहला है theoretical method, दूसरा है graphical method. But graphical method हम next week करेंगे. Next week जो हमें 2-3 lectures मिलेगा, उसमें हमारा पूरा first topic अच्छे से complete हो जाएगा. But इस week हम लोग theoretical method पढ़ेंगे और मॉड्यूल में जितने भी important questions है assignment के और हमारे जो मैंने आपको मॉड्यूल का first topic share किया सॉफ्टवेयर, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो आते हैं थ्योरेटिकल मेथड पे. सो क्लास, हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर देयर? देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. फर्स्ट का नाम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड का नाम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड का नाम है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ये उनके प्रॉपर नाम है. ओके, तो चलो लेट्स डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, अभी आप कुछ लिखना मत, मैं आपको डिक्टेट करूंगा. कंसिडर अ बॉडी moving from point A to point B. Consider a body moving from point A to point B. The body covers a displacement S, right? Let U be the initial speed of the body, the initial velocity of the body, and V be the final velocity of the body. तो आप क्या करो, ऐसा सिंपल सा एक डायग्राम बनाओ, सिंपल सा इसको एक ड्रॉ करो और लिखो कंसिडर अ बॉडी which moves from point A to point B and covers a displacement S. U be the initial velocity of the body and V be the final velocity of the body. Right? Please ये लिखो अच्छे से. Consider a body which moves from point A to point B. Consider a body which moves from point A to point B. The body covers a displacement S with initial velocity U and final velocity V. तो जब वो स्टार्ट कर रहा था A पॉइंट से, तब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी था U, और जब वो B पर पहुंच रहा है तब उसके पास फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो U stands for initial velocity, V stands for final velocity, S stands for displacement. Consider a body which moves from point A to point B. Consider a body which moves from point A to point B, where U be the initial velocity, V be the final velocity, S be the displacement, and T be the time. ये जो टर्म्स लिखा है ना, U, V, A, T, S, इन सबको लिख दो खाली, ये सब होता क्या है. Consider a body which moves from point A to point B and covers a displacement S. Let U be the initial velocity, V be the final velocity, T be the time taken, and A be the acceleration. Okay, and A be the acceleration. Okay, लिखा क्लास इतना? Yes. राइट, अब आगे देखो. करेक्ट क्लास, जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, इज देयर अ चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्ड? यस, बिकॉज at the start of the journey the body is having initial velocity U, and at the end of the journey there is a change in velocity, the body is having a final velocity V, and during this process time taken by the body is T, acceleration of the body is A, and displacement covered by the body is S. Right? So class,
व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? a is v minus u by t। इसका आपको रीजन देना, रीजन क्या है? बाय डेफिनेशन a is v minus u by t। ओके, तो a is v minus u by t, तो रीजन क्या है? बाय डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। क्या ये करेक्ट है? मैंने LHS इज इक्वल टू RHS को लिखा है, RHS इज इक्वल टू LHS, इज इट करेक्ट? यस। V minus U is A into T, ये T यहाँ पर आ गया, ये डिवीजन था ना, इज इक्वल टू के इस तरफ आने पर ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया। सो V minus U is equal to AT, V minus U is equal to AT, प्लस माइनस जब इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तब वो क्या बन जाएगा? प्लस। तो मैं लिखूं V is U plus AT, लिख सकते हैं V is U plus AT। So this is your first equation of motion, this is your first equation of motion। समझ में आया? This is your first equation of motion। So what is your first equation of motion? V is U plus AT, final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time। और आप पता है नीचे यहाँ पर लिख सकते हो, दुनिया का सबसे अच्छा फीलिंग जब आप लास्ट में ये लिखते हो, hence proved। ओके, दुनिया का सबसे अच्छा फीलिंग है जब ये प्रूव हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये लिखने के बाद आप लिख सकते हो hence proved। ओके, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। चलो नोट करो ये फटाफट, फिर हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे। ओके, फिर हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे। डन। तो क्लास हमने फर्स्ट इक्वेशन तो डिराइव कर दिया, इज इट करेक्ट? अब पुट द हेडिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पुट द हेडिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्लास बहुत ध्यान से देखो, अगर एक बॉडी ए से बी तक जा रहा है, राइट, अगर एक बॉडी ए से बी तक जा रहा है तो यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी होगा, क्या एक फिक्स्ड वेलोसिटी है इसके पास? नो, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है। बट मुझे जब एक फॉर्मूला में डिराइव करूंगा तो किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करते वक्त
हम बहुत स्पेसिफिक होकर डिराइव करते हैं या इन जनरल फॉर्मूला को बनाकर फिर स्पेसिफिक बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन? हम पहले जनरल फॉर्मूला तैयार करते हैं, फिर जनरल फॉर्मूला में कंडीशंस आगे पीछे करके हम उसको स्पेसिफिक फॉर्मूला में कन्वर्ट करते जाते हैं। जैसे इफ यू रिमेंबर, हमने एवरेज स्पीड में पहले u प्लस वी बाई टू के बारे में पढ़ा, फिर हमने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। वो फॉर्मूला बहुत स्पेसिफिक केस के लिए था ना, दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, राइट? तो हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कौन सा स्पीड कंसीडर करूं, इनिशियल, फाइनल या एवरेज स्पीड? क्या कंसीडर करें हम, इनिशियल, फाइनल या एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ, अच्छा हमने तो वेलोसिटी कंसीडर की, चलो वेलोसिटी लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट है ये? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ, अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी डायरेक्टली, तो ऑन एन एवरेज वो हर इक्वल टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी मेंटेन करेगा? u प्लस वी बाई टू, ये हमने पढ़ा ना, u प्लस वी बाई टू, राइट? तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस वी बाई टू, ओके। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है s, टोटल टाइम कितना है t, तो इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, u plus v by 2 is average velocity, this is equal to total displacement upon total time। फिर मैं इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ, s upon t is equals to u plus v by 2। is it mathematically correct? yes, okay। प्लस अब ये जो t है, ये t को यहाँ लेकर आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, s is u plus v upon 2 u plus v by 2 into t। समझ में आया? इट इज u plus v by 2 into t। अब बताओ क्लास, इसके आगे क्या करें? यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था। अब ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या डिराइव किया, v is u plus at, तो कैन आई सब्स्टिट्यूट a u plus at इंस्टेड ऑफ v? तो यहाँ पे लिखना है आपको, सब्स्टिट्यूटिंग v is u plus at from first equation in the above equation, राइट? मतलब अगर आपको स्कूल एग्जाम में सिर्फ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने आया, प्लीज मेरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपको स्कूल एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन डिराइव करना आया, तो भी आपको v इज u प्लस at तो बाय डिफॉल्ट डिराइव करना ही पड़ेगा। मतलब अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी पूछा है, तो भी आपको फर्स्ट इक्वेशन पूरा प्रूफ करना है। लिखो उसको इक्वेशन नंबर 1 लाइक दिस, फर्स्ट इक्वेशन, और फिर लिखो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन द अबव इक्वेशन। बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स मार्क्स लूज करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं v is u plus at। तो आपको सेकंड इक्वेशन भी डिराइव करने के लिए बाय डिफॉल्ट फर्स्ट तो डिराइव करना ही पड़ेगा। 2 मार्क्स के डेरिवेशन में उसको हाफ मार्क्स होता है, और 1.5 मार्क्स ये सब करने। और खाली 1 मार्क्स के लिए पूछा है तो आप डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से डिराइव कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, ओके, राइट? तो बताओ, फाइंड द आंसर, सब्स्टिट्यूट करो v u प्लस v के जगह पे u प्लस at एंड सी व्हाट विल यू गेट।
क्लास इंस्टेड ऑफ v हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ v हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं u प्लस ए टी। करेक्ट। इंस्टेड ऑफ v हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? u प्लस ए टी। बताओ u प्लस u कितना होता है? 2u प्लस की जगह प्लस ए टी क्या होता है? t। अच्छा क्लास ये t भी तो मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, तो ये जब t अंदर मल्टीप्लाई होगा, व्हाट इज ए टी इंटू टी? इज टी स्क्वायर। और ये t इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा 2ut। मैंने ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया। इज इट करेक्ट? s is 2ut/2 plus at² by 2। इज इट मैथमेटिकली करेक्ट? यस। अब आता है मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, कैंसलेशन। ओके, मेरा फेवरेट पार्ट है, कैंसिल करने बहुत मजा आता है। नेक्स्ट s इज ut। 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हेंस प्रूफ। s is ut plus half at square। s is ut plus half at राइट। तो प्लीज आपके पास 30 सेकेंड्स है, अगर किसी को कोई स्ट्रगल कर रहा है तो अभी वो नोट कर सकते हैं। फिर हम डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या डिराइव करेंगे आप? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो फॉर्मूला है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्रोनाउंस करते वक्त ऐसे ही प्रोनाउंस करना सबसे सही तरीका है। बट अगर आप इसको u t प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 लिखते हो, इट मीन्स द सेम थिंग। ओके, बिकॉज प्रोनाउंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, डन। ओके, अब आते हैं क्लास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था? v is u plus at। ओके, मैं लिखूं v माइनस u इज a इंटू टी। मैं लिखूं v माइनस u बाय a इज इक्वल्स टू t। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? इज इट करेक्ट? ओके, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए भी आपको फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना ही पड़ेगा। ओके, या आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लिख के इसको डिराइव कर सकते हैं। कैसे? आप सीधा लिखो, by the definition of acceleration we get v minus u by t, therefore t is v minus u by definition। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका है आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही ये चीज डिराइव करो और इसको नाम दे फर्स्ट। ओके, अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। प्लस इस फॉर्मूला में मैं क्या लिख सकता हूं? एवरेज। अगेन सेकेंड इक्वेशन में जो हमने स्टेप्स लिखा है वही स्टेप कॉपी करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट on
टोटल टाइम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस वी बाई टू इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ तक तो सब ठीक है, ये स्टेप भी ठीक है, s इज u प्लस वी बाई टू द होल इनटू टी। करेक्ट है क्लास? अब इसके आगे आपको लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन वन इन दिस इक्वेशन। यहाँ पर आप क्या लिखोगे वर्ड्स में, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन वन इन द अबव इक्वेशन, इसीलिए मैंने इसको डिराइव किया। इसका मतलब अगर स्कूल में आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने आएगा तो आप बाय डिफॉल्ट, अगर ज्यादा मार्क्स के लिए तो आप बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करोगे और उसको टाइम के फॉर्म में अरेंज करोगे। क्या करोगे? टाइम के फॉर्म में अरेंज करोगे, T इज v माइनस u बाई a, और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्या मिलेगा, s इज u प्लस v को हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं u प्लस v बाई टू को v प्लस u बाई टू लिख सकता हूँ? यस। और ये जो t है टाइम, मैं टाइम के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ v माइनस u बाई a। मैंने टाइम के जगह पे क्या लिखा, v माइनस u बाई a। टाइम के जगह पे क्या लिखा, v माइनस u बाई a। क्या यहाँ तक समझ में आया? देखो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है जो हमने सेकंड इक्वेशन में पढ़ा। मैंने पिछले इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में हमने सेम फॉर्मूला में v के जगह पे u प्लस ए टी सब्स्टिट्यूट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इस फॉर्मूला को सेम रखा, स्टैटिक रखा, और टाइम के जगह पे v माइनस यू बाई ए सब्स्टिट्यूट किया। और ये हमें कैसे मिला? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमें कैसे मिला? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये टाइम मिला और टाइम को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बताओ व्हाट इज v प्लस यू इंटू v माइनस यू, व्हाट इज a प्लस b इंटू a माइनस b, व्हाट इज a प्लस b इंटू a माइनस b, व्हाट इज a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 इंटू a, 2a। फिर अगेन LHS RHS को स्वैप करते हैं, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल्स टू s। आई थिंक अब आप इसके आगे तो सॉल्व कर ही सकते हो। मुझे बताओ फाइनल ये फॉर्मूला कितना आ रहा है? फाइनल ये फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, बट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम आप हमेशा v स्क्वायर और u स्क्वायर एक तरफ रखना, क्योंकि ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी ना, तो जितने सेम फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करने वाले फॉर्मूला होता है ना, उन सबको एक तरफ रखना चाहिए। बट लिखते वक्त आप ऐसे लिखो, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, b स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, b स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, चलो प्लीज नोट करो क्लास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव किया बाय थ्योरेटिकल मेथड, राइट? और नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस का डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड, और फिर लिखो हेंस प्रूफ। ओके, नोट करो, यू हैव 30 सेकंड्स।
डन, ओके। ओके, तो क्लास फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is u plus at. Second equation of motion is s is ut plus half at square. Third equation is v square is equals to u square plus 2as. v square is equals to u square plus 2as. v is u plus at, s is ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as. क्लियर? तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन से बताओ क्लास, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं पर भी आपको लगता है कॉज ऑफ मोशन इन्वॉल्वड है? क्योंकि एक बॉडी जब मोशन में होता है तो उसका स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इन्हीं फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं। तो डू यू थिंक कॉज ऑफ मोशन इज इन्वॉल्वड? नो, कॉज ऑफ मोशन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए काइनेमैटिक्स का एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था? इक्वेशंस ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग देयर कॉज। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर को इस लेक्चर के साथ? ओके, ठीक है। चलो, अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आप किसको जीरो लोगे, u या v? यस, वेरी गुड। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो u को आप क्या लोगे, जीरो। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर क्वेश्चन आता है इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट तो आप v को क्या लोगे, जीरो। समझ में आया? अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन आता है फ्री फॉल, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। देखो, इस मार्कर को मैं रिलीज करने वाला हूं, ये मार्कर जस्ट रिलीज होने वाला है, तो इसका क्या जीरो है, u जीरो है या v जीरो है? इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो, राइट? सो व्हेनेवर अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है, जीरो। फिर ग्रेविटी से अपनी तरफ पुल करेगा, और जब ग्रेविटी से अपनी तरफ पुल करेगा तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सो व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है आपको, जीरो। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स? अगर मैं एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा, दिस इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये एक पॉइंट तक जाएगा फिर वापस नीचे आने लगता है। रीजन, जब एक बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, इट लूजेस वेलोसिटी, तो इस एक हाईएस्ट पॉइंट पर आकर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, और फिर वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आता है और नीचे जाने लगता है। तो अगर आप एक बॉडी को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट करोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर एक बॉडी को एक हाइट से रिलीज करोगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो। समझ में आया? राइट? चलो, आज मुझे इतना ही पढ़ाना था। अब एक बार हम असाइनमेंट 1 और 2 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं आपको आंसर्स बताते जाऊंगा। अगर आपने उससे थोड़ा सा भी डिफरेंट आंसर लिखा है तो प्लीज आप डिफरेंट पेन या पेंसिल से करेक्शन कर लें, ओके? ताकि आपको भी पता रहेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक आपने किया है। तो असाइनमेंट 1, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not changes its position with respect to its surrounding with the passage of time. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, a body is said to be at rest if it does not changes its position with respect to its surrounding with the passage of time. ये फर्स्ट डेफिनेशन है। मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding with the passage of time. Okay? Explain why rest and motion both are relative terms. ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। रेस्ट एंड मोशन को हम रिलेटिव टर्म्स क्यों बोलते हैं? रेस्ट एंड मोशन both are interrelated terms. Both are relative terms because a body which is at rest with respect to one observer can certainly be in motion with respect to another observer. और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, if you are sitting inside a moving car,
with respect to the car you are at rest, but with respect to the person standing outside the car you are in motion. फिर motion of planets के हिसाब से भी लिख सकते हो, ट्रेन का भी एग्जांपल लिख सकते हो, right? What are scalar quantities? Give example. Scalar quantities are those which can be determined by their magnitude only. Scalar quantities are those which can be determined by their magnitude only. Example: mass, length, time, current, work, etc. Explain vector quantities. The quantities that can be determined by their magnitude as well as direction. इसका example क्या है? Displacement, velocity, acceleration, force, etc. Momentum, ये सब लिख सकते हैं. Distinguish between अब आप लिख सकते हो, दोनों का definition लिखो और example लिख सकते हो, but बीच में एक और point आपको लिखना है. जो स्केलर क्वांटिटीज होता है ना, दे कैन बी एडेड अरिथमेटिकली. तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, द स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड अरिथमेटिकली. मतलब अगर मेरे पास मास है 5 kg और एक दूसरा मास है 10 kg, मैं इन दोनों को सिंपली ऐड कर सकता हूँ कि दोनों का कंबाइंड मास कितना है, 5 + 10 15. मतलब मैं अरिथमेटिकली ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज स्केलर क्वांटिटीज में कहीं पर भी डायरेक्शन कंसिडर नहीं होता है. And vector quantities can be added or subtracted by using vector laws. Vectors को add या subtract करने के लिए हमें vector laws की जरूरत है और vector laws 11th में पढ़ना है. ओके, फिर scalar quantities कभी जीरो नहीं हो सकता. vector quantities अगर same magnitude opposite direction में है तो उनका net क्या हो सकता है? जीरो. Scalar quantities can never be zero. Vector quantities may or may not be zero या may be zero लिख सकते हैं. जो 3 पॉइंट्स काफी है. फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप डेफिनेशन लिखो. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन in a particular direction, distance is always greater than displacement. Distance can never be zero, displacement can be zero. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. ऐसे ऐसे करके कोशिश करो minimum 3 maximum 4 points लिखने. Okay, question number 8. Give reasons for the following statements, whether they are true or false. Displacement cannot be zero. Answer is false. Displacement can be zero when a body have same initial and final position. If a body has same initial and final position, then displacement of the body can be zero. तो आपको false लिखकर ये reason लिखना है. Okay. The magnitude of displacement is greater than the magnitude of displacement traveled by the object. Answer is false. Correct क्या होना चाहिए? The magnitude of distance is either equal to or greater than the magnitude of displacement. मतलब displacement equal हो सकता है distance के या छोटा हो सकता है, और distance बड़ा हो सकता है displacement के या छोटा या equal हो सकता है. Give few examples of translational motion, motion under gravity, a body travel, a car moving in a straight line, या motion of striker in a carom board. straight line ही जाता है ना, right? Oscillatory motion में आप spring का लिख सकते हो, motion of a spring और motion of simple pendulum. ठीक है, यहाँ पर हमारा first assignment complete हुआ. अब second assignment पर आते हैं. Define the following non-uniform speed. A body is said to have non-uniform speed if it covers unequal distance in equal intervals of time. Uniform speed. A body is said to have uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time. Under what condition magnitude of speed is equal to magnitude of velocity? The magnitude of speed is equal to magnitude of its velocity when a body travels in a straight line in a particular direction. ये सब कुछ होना जरूरी है. When a body travels in a straight line in a particular direction. Define speed, define velocity, distinguish class. I think आप ये लिख सकते हो. Definitions लिखो. एक का magnitude ज़्यादा होता है या equal होता है, दूसरे का magnitude equal होता है. Speed of a body can never be zero because it depends on distance. Velocity of a body can be zero if displacement is zero. फिर एक स्केलर है और एक वेक्टर है, ये सब लिख सकते हो आप. राइट. क्वेश्चन नंबर 6. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. ये NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान से. What will be the magnitude of displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? क्लास हमें कुछ मेंशन नहीं किया है कि
एक खाली बोला है एक स्क्वायर फील्ड है लाइक दिस, जिसका साइड है 10 मीटर। स्क्वायर फील्ड का नाम देते हैं एबीसीडी। इसका साइड कितना है 10 मीटर। हमें ये नहीं बोला है कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो फिजिक्स में जब भी कोई चीज मेंशन ना किया हो तो हम क्या करते हैं, जो ओरिजिन होता है वहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? ओरिजिन से। तो वो 40 सेकेंड्स में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, सॉरी एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो हमें कितना दिया है? 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स, मतलब 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स में उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बताओ 40 सेकेंड्स में उसने एक राउंड कंप्लीट किया और 40 सेकेंड्स में दूसरा राउंड कंप्लीट किया, मतलब 80 सेकेंड्स हुआ, और 40 सेकेंड्स में तीसरा राउंड कंप्लीट किया, मतलब 120 सेकेंड्स हुआ। अब इसमें हमें 140 सेकेंड्स में कहां पर होगा? तो 120 सेकेंड्स में वो 3 राउंड्स कंप्लीट कर रहा है, राइट? 40 सेकेंड्स में यूनिटरी मेथड 40 सेकेंड्स करेस्पॉन्ड्स टू 1 राउंड। तो 140 सेकेंड्स करेस्पॉन्ड्स टू x राउंड्स, unitary method. So 40 upon 140 is equals to 1 upon x, प्लस मैं x को क्या लिख सकता हूँ मालूम है? 140 upon 40. This is how much? This is 3.5. तो एक तो तरीका है कि आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा। तो हमें आंसर मिला 3.5 राउंड्स। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और हाफ राउंड, मतलब वो सी पर होगा। तो after 3.5 round the body will be at this point. तो ये इसका शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, AC स्क्वायर is AB square plus BC square. So this is 10 square plus 10 square. This is 100 plus 100. This is 200. This is 200, right? तो मैं AC square is 200. तो AC कितना हो जाएगा? Square root of 200. 200 is 2 into 100. तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? √2, और रूट ऑफ 100 कितना होता है? 10। तो आंसर आ गया ना, 10√2 मीटर्स। कितना होता है क्लास? 10√2 मीटर्स। और √2 का वैल्यू इज 1.41। तो आंसर आ जाएगा 1.41 into 10, which is 14.1 मीटर। आंसर इज 14.1 मीटर। 10 into 1.41, तो ये आ गया ना 14.1 मीटर। करेक्ट है क्लास? राइट। तो आपको यहाँ पर रीजन लिखना है। ये हमने कैसे लिया? अकॉर्डिंग टू विच थियरम? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो एक तरीका था यूनिटरी मेथड से नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करने के लिए कि आफ्टर 3.5 राउंड वो कहाँ पर होगा। एक राउंड के बाद वापस ए में, दूसरे राउंड के पास वापस ए में, तीसरे राउंड के पास वापस ए में, फिर हाफ राउंड के बाद सी पर होगा। अच्छा, मान लो 4 राउंड्स के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आफ्टर 4 राउंड्स वो वापस ए पर आता है। तो आफ्टर 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बिकॉज उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है। ओके क्लास? राइट। तो एक तरीका था कि यूनिटरी मेथड से निकालने का, जो कि सबसे सही तरीका है, और दूसरा तरीका है लेमैन मेथड, है ना, एकदम वो आम आदमी वाला मेथड। 140 सेकेंड्स, तो 40 सेकेंड में वो यहाँ पर आया, 80 सेकेंड्स में वापस यहाँ पर आया, 120 सेकेंड्स के बाद वापस यहाँ पर आएगा। तो एक्स्ट्रा 20 सेकेंड्स के बाद कहाँ पे जाएगा? आधा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब यहाँ पर। उस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground in 5 minutes. तो अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको अब न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपको गिवन डेटा लिखना है। क्या क्या गिवन है? टू फाइंड लिखना है,
फिर कैलकुलेशन शो करना है, एंड देन यू हैव टू राइट द फाइनल आंसर विद यूनिट। आपको इसी फॉर्मेट में सारे न्यूमेरिकल्स को करना है। तो गिवन डेटा में टाइम दिया है, तो देखो मैंने फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखा टाइम। टाइम का सिंबल क्या होता है? टी। तो जो भी एग्जामिनर चेक करेगा उसको पता रहेगा कि टी स्टैंड्स फॉर टाइम। ओके, तो टाइम इज 5 मिनट्स। क्लास, क्या मिनट कोई स्टैंडर्ड यूनिट है? नो, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेकर आते हैं। तो जो भी कन्वर्जन है आप गिवन डेटा में ही कर दो। फिर आपको कितना दिया है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का सिंबल है v, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आपको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? s। तो मैं लिखूं v is s by t, therefore s is v into t, so this is 3 × 10⁸ into 300। तो आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻10, क्योंकि ये 8 है यहाँ पर और यहाँ पे 2 और जीरोस है, तो 10⁻10 हो जाएगा। मैक्सिमम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट किया प्रॉब्लम को सॉल्व करके, और आप मान के चलो कि अगर आपने गलती की है तो प्लीज ये करेक्शन करो, राइट, और एल्स यू विल लूज मार्क्स। ओके, नेक्स्ट आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे, इसको बोलते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? Therefore, the distance of the spaceship from the ground station is 9 × 10⁻10 meter। ये वर्ड्स में लिखो, because ये फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कैरीज हाफ मार्क्स। Therefore, the distance of the क्या था वो? The distance of the spaceship from the ground station is 9 × 10⁻10 meter। Okay, right? तो ठीक, करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे।